Exercise 10.5. Exercise 10.5. That is supplementary content. So first question. Here first question is find scalar triple product of vector A, B and C. Find A, B, C if given three vectors are vector A is given vector A is I minus 2j plus 3k. Vector B is 2i minus 3j plus k, and vector C is 3i plus j minus 2k. These are the given three vectors. Here you have to find the scalar triple product of these given three vectors A, B and C. Very simple. कल हमने डिस्कस किया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं. It is determinant form. Three rows are there, and that three rows are nothing but the scalar components of this given vector A, B and C. So first row is the scalar component of vector A. So scalar components of vector A are 1, minus 2, 3. So this one is 1, minus 2, 3. Second row is the scalar components of vector B. Scalar components of vector B are 2, minus 3 and 1. 2, minus 3, 1. And third row is the scalar component of vector C, which are 3, 1, minus 2. 3, 1, minus 2. Done? This is our determinant. Perform expansion of determinant, find the value of determinant. That will be our scalar triple product. So this one is 1 into minus 3 minus 2, 6 minus 1, minus 2, so it's a plus 2, minus 4 minus 3, minus 4 minus 3, plus 3 into 1 plus 9. Done? This is our scalar triple product. मजा आ गया. 6 minus 1, 5 minus 4 minus 3 minus 7 into 2 minus 14. हाँ बोलो. 10.5 है ही नहीं, ये सप्लीमेंट्री कंटेंट है ना. सप्लीमेंट्री कंटेंट को 10.5 बोल दिया है. देखो लास्ट में मिसलिनियस के बाद सप्लीमेंट्री कंटेंट लास्ट में होगी. डन? मिला? ये 2 है. 2 मिला कि नहीं मिला? सीधा 9 plus 2 11 3 जा 30. लास्ट में देखो सप्लीमेंट्री कंटेंट 38 minus 14, so it's a 24. Hence scalar triple product of these three vector is 24. देखो सप्लीमेंट्री कंटेंट आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट में होगा चैप्टर वाइज. और सीधा किसी में नहीं है. मैं टेक्स्ट बुक लेके नहीं बैठा हूँ, मैं अपनी नोट्स लेके बैठा हूँ, तो मेरे पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है. लास्ट में देखो now second sum. So that the vectors A, B and C are coplanar. ये भी हमने स्टडी किया था for coplanarity condition. लास्ट पॉइंट था. So here you have to prove that given three vectors, vector A is I minus 2j plus 3k. First vector B is minus 2i plus 3j minus 4k, and vector C, that is I minus 3j plus 5k. These three vectors are coplanar vectors. These three vectors are coplanar vectors. So we have discussed the condition for the coplanarity. For that, scalar triple product of these three vectors must be 0. That we have to prove. Done? So for
coplanar vectors. We have to prove that scalar triple product of these three vector is 0. So let's check this scalar triple product. So here scalar triple product of three vectors A, B and C is again 1 minus 2 3 minus 2 3 minus 4 1 minus 3 5. Determinant ले लो. Now check the value of this determinant. It must be equal to 0. 0 आना है ना. अगर एग्जाम में नहीं आता है तो आपको इसको कैसे भी करके 0 आके छोड़ देना है. 1 5 3 is 15 minus 3 4 is 12 plus 2 minus 10 plus 4 plus 3 6 minus 3 6 minus 3. This is equal to 3 plus 14 2 is 28. ये माइनस 10 था तो माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 और ये 3 इंटू प्लस 6 ये रेडी 9 प्लस 9 है ना 9 प्लस 3 12 माइनस 12 0 आ गया है ना. कैसे भी करके 0 को लेके ही आना है. सो हियर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री वेक्टर इज 0 है ना. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर इज 0. hence we can say that therefore vector A, vector B and vector C are coplanar vectors. Given three vectors are coplanar vectors. Is that clear? समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड. इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है ना. या लिख के रखना. थर्ड, now using the condition of coplanarity of three vectors find the value of unknown variable. तो इसमें कैसा होता है देखो. find the lambda, find the value of lambda if the given three vectors are coplanar vectors. Again same condition is given, you have to perform same operation but different simplification. Find the value of lambda if given three vectors are, let three vecters are A, B and C. Given three vectors are A, B, C हमने assume कर लिया. So vector A is, A को बोलते हैं हम I minus J plus K, I minus J plus K. Vector B is 3I plus J plus 2K. And vector C is I plus lambda j minus 3K. So here given three vectors are given three vectors are coplanar vectors and find the value of this lambda. Done. Find the value of this lambda. So here it is given that vector A, vector B and vector C are coplanar vectors. Three vectors are coplanar vectors and therefore we can say that scalar triple product of these three vector is 0. And therefore solving this equation we will get the value of lambda. So we can write this scalar triple product as a determinant. So determinant is first row 1 minus 1 1 1 minus 1 1 1 minus 1 1. Second row 3 1 2 3 1 2. Third row 1 lambda minus 3 and this is equal to 0. ये पूरा इक्वेशन आ गया. Solve this determinant, we'll get the value of lambda. Done. So here expansion of determinant along with this first row. So it's a 1 into minus 3 minus 3
minus 2 lambda plus 1, so minus 9 minus 2 plus 1 3 lambda minus 1 इक्वल टू 0। एक्सपांशन हो गया, अभी सिंप्लीफिकेशन भी करना पड़ेगा। तो इट्स माइनस 3 माइनस 2 लेमड़ा, माइनस 3 माइनस 2 लेमड़ा minus 11 plus 3 lambda minus 1 equal to 0. So this will be 3 lambda minus 2 lambda. It's a lambda only. Minus 11 minus 3 minus 14 minus 1 minus 15 equal to 0. So here solution of this equation is lambda equal to 15 is the our answer. Lambda equal to 15 is the answer. Done. So this is how you can find the value of unknowns when given three vectors are कोप्लानर वेक्टर्स। डन। कुछ भी नया नहीं है, डिटरमिनेंट भी हमें आता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी हमें आती है। कौन बोला, कौन बोला? दीपक सर। हाँ सर, हाँ सर, देखो देखो, है ना, हमें ये फर्स्ट रो को यूज करके एक्सपांशन करना है। ये तीनों एलिमेंट ले लिए हमने। अभी फर्स्ट आपको वन कंसिडर करना है। वन कंसिडर करेंगे ना सर, तो वन के लिए आपको ये वाला डिटरमिनेंट है ना 2/2, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको कंसिडर करना है। तो वन मल्टीप्लाई बाई इसका मल्टीप्लीकेशन करो, -3 माइनस 2 लेमड़ा, तो ये -3 माइनस 2 लेमड़ा आ गया, है ना। ये डायगोनल और इसको 2 लेमड़ा के साथ सेकेंडरी डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद ये जो बीच वाला जो होता है ना एलिमेंट, उसकी साइन माइनस होती है, तो ये माइनस रखेंगे, ये -1 रखेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डन। अभी ये एलिमेंट के लिए हमें ये रो और ये कॉलम निगलेक्ट करना है, तो अभी ये बचेगा 3 1 2 3, फिर से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा -9 होगा और -2 होगा, तो ये -9 -2 हो गया। डन। उसके बाद ये एलिमेंट की बारी आ गई, तो इसको +1 करके रखेंगे, तो इसके लिए जो डिटरमिनेंट रहेगा ये 2/2 ये रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 3 लैम्बडा -1, 3 लैम्बडा -1 इक्वल टू 0। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर सर? फोर्थ क्वेश्चन, अभी सिलेबस हो गया है। नाउ फोर्थ, आप सब भी आ जाना। वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। वेक्टर ए इट इज आई प्लस जे प्लस के। वेक्टर बी इक्वल टू I only, and vector C, three vectors are given, C1I plus C2J plus C3K. These are the given three vectors A, B and C. करना क्या है, देखो two questions are there. First question is question number A. So here we are given that if C1 equal to 1, C2 equal to 2, talking about this vector C, C1 equal to 1, C2 equal to 2. So find the value of C3, स्केलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर C, है ना। इसका C1 दिया है, C2 दिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर, वैल्यू ऑफ दिस स्केलर कंपोनेंट अलोंग विद द z डायरेक्शन, दैट इज वैल्यू ऑफ दिस C3 कंपोनेंट, ये आपको फाइंड करना है। which makes, condition is which makes these three vectors coplanar vector, find the value of this C3 which makes these three vectors coplanar vector। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर ए, बी और सी है वो तीनों कैसे वेक्टर हैं? कोप्लानर वेक्टर हैं। सो हियर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, टू मेक दिस वेक्टर ए, बी एंड सी कोप्लानर, vector, what we have to do? That scalar triple product a b c equal to 0, इसको बॉक्स भी बोलते हैं, बॉक्स a b c equal to 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गई, बस C3 की वैल्यू निकालनी है। सो वेक्टर ए इज 1 1 1, फर्स्ट रो 1 1 1। वेक्टर बी ओनली I component is there, J and K both are 0, scalar component along with the x direction and y direction, sorry y direction and z direction are 0, तो यहाँ पर आपको 0 पुट करना है। C1 C2 and C3, C1 is 1, C2 is 2 और आपको C3 निकालना है, so C3 is 0, so that this given three vectors are coplanar vectors, value of determinant is 0। इसका एक्सपांशन करो, C3 की वैल्यू निकालो। सो नाउ 1 into, दीपक सर फिर से, है ना, एक्सपांशन अलोंग विद दिस फर्स्ट एलिमेंट,
तो ये होगा 0 इंटू 0 0। नाउ अलॉन्ग विद दिस -1 तो ये होगा C3 -0, तो -1 इंटू C3 आएगा सिर्फ, प्लस ये लास्ट कंपोनेंट 1, तो ये 2 -0, तो ये 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया -C3 प्लस 2 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर C3 इक्वल टू 2 इज द आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर दिस वेक्टर C, इफ यू आर टेकिंग C1 इक्वल टू कहाँ लिखा है, C1 इक्वल टू 1, C2 इक्वल टू 2, and if we take this C3 equal to this 2 value, then we are getting this vector A, B and C are coplanar vectors। तीनों का जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो 0 हो जाएगा। डन, इसका ये मतलब था। ये क्वेश्चन नंबर ए था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी भी है, तो देखो क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला है। सो हियर फॉर दिस बी we are given that if C2 equal to -1, if C2 equal to -1 and C3 equal to 1, then show that no value of C1, बोलो no value of C1, इसको निगलेक्ट करना है। कई बार हम कई सारे लोगों को निगलेक्ट कर देते हैं ना, तो ऐसे आपको C1 को भी निगलेक्ट करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ C2, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ C2, देखो C2 इफ -1 ले लिया, C3 1 ले लिया, so no value of C1 makes vector ABC coplanar। that means तीनों वेक्टर ABC को कोप्लानर होने के लिए, है ना, ये जो C1 वैल्यू है ना, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप C1 की कोई भी वैल्यू ले लो, ये तीनों वेक्टर कोप्लानर वेक्टर हो जाएंगे। ऐसा आपको दिखाना है, मैथमेटिकली दिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं चलो। सो वी हैव टू प्रूव दैट वेक्टर A B C scalar triple product of this three vector is 0, that is not depends on value of this C1, है ना। आप C1 की कोई भी वैल्यू ले लो, उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट ही नहीं करती है। देखो कैसे, ये हमने डिटरमिनेंट ले लिया, फर्स्ट रो था 1 1 1 वेक्टर A, वेक्टर B था 1 0 0, और वेक्टर C के लिए क्या करना है, C1 आपको C1 ही रखना है, इसकी कोई भी वैल्यू लेनी है। तो C1 इज वन वेरिएबल, C2 लेना है -1 और C3 लेना है 1, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी और उस पर ये C1 की कोई इफेक्ट नहीं आ रही है। देखो ये C1 है ना 0 हो जाएगा, एक्सपांशन में उसकी वैल्यू आती है नहीं कहीं पर भी। देखो 1 इंटू 0 माइनस 0, तो ये 0 हो गया, -1 इंटू 1 1 1, देखो -1 इंटू 1, और ये C1 इसका C1 इंटू 0 0, तो C1 को निगलेक्ट हो गया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो आप C1 की कोई भी वैल्यू ले लो, देखो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। 1 इंटू -1 फिर से 0, तो एक्सपांशन में कहीं C1 आया ही नहीं, देखो। तो दिस वन इज 0, दिस वन इज ये 1 इंटू -1, देखो ये -2 और ये -2, सो दिस इज -4। तो देखो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये 0 नहीं आता है। क्यों? बिकॉज क्या प्रूव करना है, नो वैल्यू ऑफ C1 इज देयर, C1 की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है विच मेक्स दिस थ्री वेक्टर्स A B C कोप्लानर। आप C1 की कोई भी वैल्यू पुट करो, एक्सपांशन में उसकी वैल्यू आती नहीं है और वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती नहीं है। सो नो वैल्यू ऑफ C1, नो वैल्यू ऑफ C1 makes this given three vectors A, B and C coplanar। अब C1 की कोई भी वैल्यू अपन पुट करो, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होने वाली नहीं है। सो नो वैल्यू ऑफ C1 makes this makes these three vectors A, B, C coplanar। स्टूडेंट्स इतना समझ में आया, क्लियर? ओके चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो 2 क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। प्रूव दैट 4 पॉइंट्स, है ना, अभी हम वेक्टर की बात कर रहे थे लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 4 पॉइंट्स की।
so that 4 points position vectors are, so let's say 4 points are point A, B, C and D. So position vector of point A is 4i plus 8j प्लस 12k है ना। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है ये, इसको हम ए बोलेंगे। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट बी इज 2i प्लस 4j प्लस 6k। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज, ये दिया हुआ है, इसको हमने अज्यूम किया है। पॉइंट सी इज 3i प्लस 5j प्लस 4k एंड डी 5i plus 8j plus 5k. So these are the 4 points. Point A, B, C and D. Four points are given and their position vectors are given. तो प्लेन में ऐसे 4 पॉइंट्स दे दिए आपको, है ना। अज्यूम कर ले कि सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया ओरिजिन 0। तो यहाँ से सबके पोजीशन वेक्टर दिए, ये ए का पोजीशन वेक्टर, ये बी का पोजीशन वेक्टर, ये सी का पोजीशन वेक्टर और ये डी के पोजीशन वेक्टर, ऐसे दिया हुआ है। आ गया समझ में। ये आपका ओरिजिन पॉइंट ओ है, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो ऐसे 4 पॉइंट्स प्लेन में दिए हुए हैं और इसके पोजीशन वेक्टर दिए। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ऑल दिस 4 पॉइंट्स आर को-प्लानर पॉइंट्स। क्या प्रूव करना है? ऑल दिस 4 पॉइंट्स आर को-प्लानर पॉइंट्स। दैट मीन्स ऑल 4 पॉइंट्स लाइज इन अ सेम प्लेन। ये चारों पॉइंट एक प्लेन में आए हुए हैं। दे ऑल 4 पॉइंट्स लाइज इन अ सेम प्लेन, दैट वी हैव टू प्रूव। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? सो इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? सो फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंसीडरिंग दिस 3 vectors from this common point D. That means vector dA, vector dB and vector dC. देखो 4 points are there, point A, B, C and D. For that we will consider 3 vectors, vector dA, then vector dB and vector dC. We will prove that these 3 vectors are coplanar vectors and hence for these 4 points are coplanar points. Clear? ये concept समझ में आ गया है ना। 4 पॉइंट को आपको कोप्लानर प्रूव करना है तो उसके लिए हम 3 वेक्टर, कौन से, एक ही पॉइंट में से 3 वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वेक्टर डीए, डीबी एंड डीसी, और ये तीनों वेक्टर को हम कोप्लानर प्रूव कर देंगे। 3 वेक्टर कोप्लानर है, दैट मीन्स ये चारों पॉइंट कोप्लानर पॉइंट है। हर्षिता क्लियर? सो व्हाट इज वेक्टर डीए? वेक्टर डीए इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर डी, है ना। ऐसे होगा, वेक्टर डी इज ए के पोजीशन वेक्टर में से डी के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ए माइनस डी। सो हियर वेक्टर डी ए इज ए माइनस डी, तो क्या होगा, ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, सो इट्स माइनस आई। वेक्टर डी ए, ए में से डी सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट्स माइनस आई 0j प्लस 7k। यही होगा ना। ये 4 वेक्टर मैंने सही लिया ना, 4i 8k प्लस 2i प्लस 2j 6k p। ओके, तो ये 0j और ये होगा 7k। डन, वेक्टर डी हो गया। उसके बाद लेंगे वेक्टर डीबी। वेक्टर डीबी, तो डीबी क्या होगा, बी में से डी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट्स माइनस 3i माइनस 4j प्लस के। उसके बाद लेंगे वेक्टर डीसी। डीसी, सी में से डी को सब्ट्रैक्ट करना है, सो माइनस 2i माइनस 3j minus k. These are the 3 vectors dA, dB and dC. So now for these 3 vectors we will check condition of coplanarity, whether they are coplanar vector or not. So vector dA है ना, scalar triple product, vector dB and vector dC,
So let's check this scalar triple product. It must be 0. So dA I j k, I is -1, j is 0, and k is 7. dB -3, -4, 1, and dC -2, -3, -1. डन, ये आ गया. एक्सपांशन करें, इट्स अ -1 इंटू 4, 4 + 3, 4 + 3, ये 0, और ये +7 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 -4 2 ज़ा 8. So this is equal to -7, and this is equal to +7, and this is equal to 0. Done. So here scalar triple product of these three vectors is 0. So all three vectors are coplanar vectors, and therefore if these three vectors are coplanar vectors, we can say that these 4 points A, B, C, D are coplanar points. Coplanar points. Understood? Question number 6. So here we are given that find the value of x. Find the value of x such that 4 points are given. देखो लास्ट क्वेश्चन था वही, लेकिन यहाँ पर पोजीशन वेक्टर की जगह पर कोऑर्डिनेट्स दिए. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 3 2 1. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 4 x 5. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर 4 2 -2, and coordinates of point D are 6 5 -1. So here find the value of x such that all 4 points are coplanar. 4 points are coplanar points. These 4 points are coplanar points. Find the value of x. Done. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों पॉइंट ए की प्लेन पर है, तो इसको हम ले ले पॉइंट ए, इसको ले ले पॉइंट बी, इसको बोल दे पॉइंट सी, और इसको बोल दे पॉइंट डी. आप कहीं पर भी ले सकते हो, है ना. ऑल 4 points are coplanar points. That means all 4 points lies in a same plan. So here again we can draw vector dA, vector dB, and vector dC. Done. So now we have to prove that these three vectors dA, dB, and dC are coplanars. That is given. So that is equal to 0 आप लिख सकते हो. उसके बाद सिंप्लीफाई करके आपको x निकालना है. Done. So first we'll find vector. यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लिखो. ए के होंगे 3 2 1, बी का पोजीशन वेक्टर 4 x 5, सी 4 2 -2, and d 6 5 -1. So here first vector is vector dA. So vector dA is a minus d. तो 3 - 6, 3 - 6 क्या होगा, प्लस 2 - 5, 2 - 5 j, प्लस 1 + 1 k, है ना. पोजीशन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है. सो वेक्टर dA is 3 - 6 -3i, प्लस 2 - 5, ये होगा -3j, एंड 1 - 1, तो 1 माइनस प्लस, सो 2k. ऐसे आपको मिलेगा वेक्टर dA. सिमिलरली वी कैन गेट वेक्टर dB. वेक्टर dB के लिए b माइनस d करना है. सो 4 - 6 -2i, प्लस x - 5, x - 5j, प्लस 5 - -1, 5 - 1 is 5 + 1, 6k. Then this is our vector dB. Find vector dC. Vector dC is 4 - 6 -2i, 2 - 5 -3j, -2 - 1, so it's a -k. These three vectors are coplanar vectors given, है ना, क्योंकि all 4 points are coplanar. Hence A, B, C, D are coplanar. 4 points are coplanar, and therefore we can say that three vectors are coplanar. dA, dB, and dC are coplanar. Three vectors are coplanars, so we can write dA, dB, dC. Scalar triple product is 0. Done. Find the value of determinant and find the value of x. That will be your answer. So here dA -3
minus 3, 2. dB minus 2, x minus 5, 6. dC minus 2, minus 3, minus 1. So this is one determinant. Perform the expansion of this determinant. We will get the value of x.